देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना और इलाक़े दक्कन की खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, मुस्लिम शरीफ। हर एक बिदअत गुमराही है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। तरक्की के लिए मंसूबाबंद तरीके से काम किया जाए, वासला मर्री ग्राम सभा से चीफ मिनिस्टर KCR का खिताब। सभी बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा, रियासती वजीर इम्कना वेमुला प्रशांत रेड्डी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज यादाद्री भुवंगी जिले के वासला मर्री मौजे में ग्राम सभा में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, रियासती वजीर पंचायत राज इर्रबल्ली दयाकर के अलावा जिले अहदेदारान और ग्राम सरपंच ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि गांव में अमन को यकीनी बनाया जाए, आवाम में एक दूसरे के तय मोहब्बत का माहौल हो, तब कहीं जाकर सारे गांव में तरक्की यकीनी होगी। उन्होंने कहा कि गांव की तरक्की के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि गांव में रहने वाले बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम करे और एक मंसूबाबंद तरीके से अगर काम किया जाए तो कामयाबी यकीनी है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर गांव की तरक्की के लिए मुख्तलिफ ऐलानात किए। వాసాల మర్రి గ్రామం యొక్క అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. సప్పట్లు కొట్టుడు కాదు, పని చేయాలి. ఇంతకుముందు ఒక ఆయన సీటు కొడుతుండు, సీటు కొట్టడానికి నేనేమన్నా సినిమా యాక్టర్ నాకు అర్థం కాదు. సీటీలు బంధు, వట్టిలోలి బంధు. రేపటి నుంచి అంజయ్య గారు, నవీన్ గారు నాయకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి పని జరగాలి. ఒక ఇద్దరు ఆడబిడ్డలు పెద్ద మనుషులు నాతో కూర్చొని భోంచేసిండ్రు. ఆకుల ఆగమ్మ, చిన్నూరి లక్ష్మి. నేను వాళ్ళని పక్క కూర్చోబెట్టుకుని అన్నం తిన్నా. ఆఖరికి నాకు 2 అల్లనేరేడు పండ్లు పెట్టింది. తినమ్మా అని ఆమె కూడా ఇచ్చిన ఆగమ్మకు అల్లనేరేడు పండు. ఊళ్ళో ఉన్నాయా అల్లనేరేడు చెట్లు అంటే లేవు బిడ్డ, మొత్తమే లేవన్నది. ఊరికి ఇట్లుంటుందా అల్లనేరేడు చెట్లు లేకుండా? ఉంటుందా? మరి ఎందుకున్నది? అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రేమ భావం కావాలి. ఒకరిని చూస్తే ఒకరు కోపానికి వచ్చే పరిస్థితి ఉండద్దు. నేను పోలీస్ కమిషనర్ గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఊళ్ళో పోలీస్ కేసులు ఉండద్దు. ఏమైనా ఉంటే వెంటనే పరిష్కారం చేసి వాపసు తీసుకోవాలి. ఒకరిని చూస్తే ఇంకోలం చిరునవ్వు నవ్వాలి. ప్రేమభావం ఉండాలి. ఎవలమైనా ఒకటే, కష్టం ఎవలదైనా ఒకటే, బాధ ఎవలదైనా ఒకటే అనేటువంటి భావం నా పక్కింటి అవుననిపించుకోవాలి ప్రపంచం ముందట. వాసాల మర్రి మా జిల్లా మంత్రి గారు చెప్తే, మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే, మా ఎమ్మెల్యే చెప్తే ఒక పట్టుబట్టి
అద్భుతం చేసిందనే పేరు రావాలి. చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. దానికోసం నేను వాసాల మరికి వచ్చిన. ఈ ఊరు మీద నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పటి నుంచి నేను అనేక సార్లు వచ్చుకుంటూ పోయినా. అంత వంకర టింకర, రోడ్డు చక్కగా లేదు, అన్ని గడ్డలు గెర్రెలు, గందరగోళంగా అనిపించింది. నాకు మంచిగా అనిపించలే. ఏంది ఊరు ఇట్లెందుకున్నది, కొద్దిగా బాగు చేయొచ్చు కదా, బాగుపడచ్చు కదా అని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ పోయిన మనసులో. చివరికి మొన్న వరంగల్ జిల్లాలో మంత్రి దయాకర్ రావు గారు అక్కడ రైతు వేదిక ఇనాగరేషన్ అని పిలిచిండ్రు, కొడకండ్ల అనే ప్రాంతంలో. అక్కడి నుంచి వాపసు పోతున్న రాత్రి 9 అవుతుంది. ఆ స్కూల్ కాడ చౌరస్తా మీద ఆగి ఒక 5-6 ఉండ్రి వాళ్ళతో మాట్లాడిన. మీ సర్పంచ్ గారు ఎవరు, మీ ఎంపీటీసీ గారు ఎవరు, మీ ఊరు గిట్లెందుకున్నది, ఇక గట్టే ఉన్నాం సార్ అని చెప్పారు వాళ్ళు. తర్వాత ఈ ఊరిని బాగు చేద్దాం, మంచిగా చేద్దాం, మీరందరూ సిద్ధంగా ఉంటారంటే ఉంటామన్నారు. रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज रियासती वजीर बराए इमारात शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हमरा महबूब नगर की ड्यूटी पल्ली में 62.66 करोड़ की लागत से तामीर करदा 1024 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ इन मकानात के लिए मिशन भगीरथा के जरिए पानी की फराहमी के लिए 3.60 करोड़ की लागत से मिशन भगीरथा पानी की सरबराही के निज़ाम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर दोनों विज़रा को आवाम ने तहनीत पेश की। बाद अज़ां दोनों विज़रा ने महबूब नगर बाईपास सड़क का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया के सी नरसिमलू, नायब सदर नशीन DCC बैंक के वेंकटैया और दीगर मौजूद थे। कौमी सफाई कर्मचारी कमीशन रुकन अंजना पवार की सदारत में GHMC में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, जल मंडली MD दाना किशोर और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद शिखा गोयल ने शिरकत की। इस इजलास में सफाई कर्मचारियों के मसाइल और इनके हकूक़ के मुताल्लिक़ जायजा लिया गया। तो मेरा परिचय तो खैर है ही, लेकिन मैं खुद अपने आप दे देती हूँ। मैं अंजना पवार, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाना जाता है। जब हम सब लोग घरों पर सुरक्षित हैं, चुपकर बैठे हैं कोरोना के डर से, ऐसे समय में इस समाज के लोग बाहर सड़कों पर काम कर रहे हैं। इस समाज के लिए इनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए हम लोगों को आयोग में बनाया गया है। समस्याओं का शीघ्र करने के लिए, उसके लिए हम और आप साथ मिलकर उनके लिए करेंगे काम। थैंक यू। पाकिस्तान में चल रहे PSL पाकिस्तान सुपर लीग पर हैदराबाद में क्रिकेट बैटिंग जोरों शोर से चल रही है। सैबराबाद पुलिस की जानिब से इस खुसूस में खुसूसी निगहदाश्त रखी जा रही थी। इसी ज़िमन में माधापुर SOT की जानिब से पावनी अपार्टमेंट भंडारी लेआउट निज़ामपेट के एक मकान पर धावा किया गया,
जिसमें 5 अफराद को क्रिकेट बैटिंग की पादाश में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20,50,000 रुपये नकद, 26 सेलफोन, एक लैपटॉप बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस साबरकात वीसी संजय नार ने इस खुसूस में मजीद तफसीलात से आगाह किया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। జాయింట్ ఆపరేషన్ లో ఒక క్రికెట్ బెట్టింగ్ గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. మీరందరూ అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఏం లీగ్ లేవా, ఐపీఎల్ కూడా అయిపోయింది, ఎక్కడ కూడా మ్యాచెస్ లేదనుకుంటున్నారు. బట్ మన వాళ్ళు బెట్టింగ్ ఆడేది పాకిస్తాన్ లో జరిగే క్రికెట్ పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ మ్యాచెస్ కోసము బెట్టింగ్ ఆడుతున్న ఈ గ్యాంగ్ ని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తము 5 అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 20,50,000 రూపాయలని సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 33 మొబైల్ ఫోన్స్ ని, ఒక ఎంఐ టీవీ, ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక హ్యాట్వే రూటర్, ఒక బెట్టింగ్ బోర్డ్ ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ ఈ నెల 8 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 24 దాకా ఈ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాం. మొత్తం అక్కడ 6 టీమ్స్ ఈ ఒక టోర్నమెంట్ లో పాల్గొంటున్నాం. ఈ మ్యాచెస్ కోసం కూడా బెట్టింగ్ నడుస్తుందని చెప్పి చాలా మనకు ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. మన ఎస్ఓటి ఆఫీసర్స్, డీసీపీ ఎస్ఓటి సందీప్ నేతృత్వంలో చాలా గట్టి నిఘా పెట్టడం జరిగింది. నిన్నే జరుగుతున్న మ్యాచ్ ముల్తాన్ సుల్తాన్ వర్సెస్ ఇస్లామాబాద్ యునైటెడ్ ఈ మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో నిజాంపేటలో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ ని, ఒక అపార్ట్మెంట్ ని మనం రేడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఈ 5 మొత్తం 20,50,000 రూపాయలని సీజ్ చేయడం జరిగింది. డీటెయిల్స్కి వెళ్తే సోమన్న అని చెప్పి ఈజ్ ద మెయిన్ ఆర్గనైజర్. ఈయన ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటున్నారు. ఆని మొత్తం ర్యాకెట్ నడిపిస్తున్నారు. మొత్తం ఈ యొక్క నెట్వర్క్ ఆనేది. A2 గుంటూరి సత్య పవన్ కుమార్ ఈయన ఆర్గనైజర్. ఈయన రెసిడెంట్ ఆఫ్ నారసాయ అగ్రహారం, భీమావరం టౌన్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఇంకా A3కి వెళ్తే ఉదార రాజు సతీష్ రాజు. चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में DRDL के मुकाबिल में एक ट्रक ड्राइवर ने एक बरकी खंबे को टक्कर दे दी, जिस पर बरकी खंबा जमीन की तरफ झुक गया। इत्तला मिलते ही मुकामी बरकी के अहदेदार मौके पर पहुंचकर जंगी खतूत पर खंबे की दुरुस्तगी और बरकी बहाली का काम किया। लॉरी ड्राइवर फरार हो गया। अपूगुड़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और दीगर भी मौके पर पहुंचकर काम की निगरानी की। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जालिम शख्स ने अपनी ही बीवी को हेलमेट से मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अपने ही घर में चोरों की तरह घुसकर अपनी मासूम बच्ची को ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब इसकी बीवी ने इसे रोका तो इसने अपनी ही बीवी को हेलमेट से मारकर जख्मी कर दिया। बादअज़ा मुतासिरा खातून ने पुलिस स्टेशन में शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। देखो साहब, बच्ची का ये हालत कर दिए। हम नहीं थे घर में, आके मारम पीटी करके गए बच्ची को छीन के ले जा रहे थे। कहते साहब, हम लोगों को मालूम होते कि हम लोग भाग के आए, अब हमारी ननन करने गए थे हम लोग। साहब कुछ करिए हमारी बच्ची को, आप उसके संगत रखना नहीं है हमारे को। आप कुछ करिए, हमारी बच्ची के तरफ से कुछ मदद करिए, कुछ हेल्प करिए हमारे को आप लोग।
हमारी बच्ची को ऐसा करे। 1.5 साल से तो भी हमारी बच्ची हमारे कने है। अब कौन बोले कि क्या बोले कि हम देंगे घर में बोल के मारम पीटी करा आके, देखो साहब घर का हाल करा सो बच्ची का हमारे आके मारम पीटी करके। कुछ मदद करिए हमारे लिए आप लोग करिए हमारे लिए, हमारी बच्ची की आस है। हमारे को उसके संगा तब रखना नहीं है हमारी बच्ची को। जिम्मेदारी कौन लेते? ऐसा मारम पीटी करके गए तो हम क्या घर के बाहर भी नहीं निकलना हमारी बच्ची को छोड़ के। अब बच्ची इतनी छोटी है, ये बच्ची को छीन के लेके जा रहा था। बच्ची को चक्कर बहुत आ रही, हाथ उठ रहा नहीं बच्ची का, हमारे मार के करके गए। अब बच्ची को हाथ उठ रहा नहीं, अब बच्ची को दवाखाने पे लेके जाना, हम क्या करना समझ में नहीं आ रहा हमारे को। हम बैठे हुए ऐसा, इतनी बच्ची छोटी है, देखिए ये बच्ची को ले जा रही। 1-1.5 साल से बच्ची को फोन करे नहीं, देखे नहीं, आके कुछ नहीं, अब आके अचानक खींच के लेके जा रहे हैं बच्ची को। शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग हमारा केस ले लिए और हम लोग दवाखाने को गए थे, यहाँ से MNC कराए। ऐसा हाथ तोड़ दिए। देखो हमारे शौहर आए थे, मारम पीटी करे, बच्ची को छीन के लेके जा रहे थे। उनको कहीं को लेके जा रहे हैं बोल के बोले तो हेलमेट से मार के देखो पूरा हाथ तोड़ दिए मेरा, और गर्दन में भी दर्द हो रहा बहुत। हम लोग रैन बाज़ार PS का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग को बहुत सपोर्ट करे उन लोग। शुक्रिया चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया उन्हें, मेरी और मेरी बेटी की। उन्हें ये चाह रहा कि मैं एक माँ से औलाद को अलग कर देना बोल के चाह रहा। मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। देखिए मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा, ऐसा कर दे के चले गया उन्हें। 1-1.5 साल से तो मैं अपने मम्मी के घर पे थी, एक फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। मेरे को इंसाफ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, कहाँ से करना कि हमारे माँ बाप इतना पैसा जोड़ जोड़ के शादी करते हैं और ये दलिंदर ऐसा करके हमारी ज़िंदगी ख़राब करे, तो हमारे माँ बाप क्या करना? फिर शादी भी करके देना और शादी के बाद भी हमको घर में बिठा के पालना। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। आप हुकूमत से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। मैडम आपका हाथ को कहाँ हुआ बतलाइए एक बार। देखिए हाथ पूरा मेरा। ये कब हुआ मामा? ये आज हुआ। ये कितने बजे हुआ? 12 बजे के टाइम तो उतना नहीं, देखिए 12 बजे के आसपास में हुआ ये। आपके वालदा कोई भी नहीं घर पे नहीं थे वो लोग, मैं फुप्पू के पास गए हुए थे वो लगा। उनको कौन बोले क्या है मेरे को नहीं मालूम, घर पे नहीं है बोल के, नहीं है सो देख के मौका उठा के नो आके बच्ची को छीन के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। कैसा लेके जाते बोल के मैं बीच में गई तो उन्होंने हेलमेट से मार के मेरे को ढकल दिए। उन्होंने मेरे को घर का पूरा सामान वे नुकसान कर दिए। देखिए हाथ ऐसा कर दिए मेरे को। जिला निजामाबाद के नवीपेट मंडल में नालेश्वर गांव में 2 गिरोहों में तसादुम हो गया। दोनों गिरोहों ने एक दूसरे पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक पुरानी मखासिमत इस झगड़े की वजह है। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद आमिर शकील ने आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मुताल्लिक़ आवाम में गैर ज़रूरी शक व शुबहात देखे जा रहे हैं, जो सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसके कोई मुज़िर असरात नहीं हैं और आवाम को चाहिए कि बिला खौफ व ख़तर वैक्सीन लगवाएं। मंचरिया जिला मुस्तक़ा पर एक आम शहरी को उस वक्त हैरान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब इसके हाथों इसके घर की बरक़ी बिल आई। नाज़रीन आपको जानकर हैरत होगी, वो बरक़ी बिल 6,70,000 रुपये है। ये वाक़या है मंचरियाल मुस्तक़र के गौतमी नगर के रहने वाले मधुरा वानी को मौसूल हुई और जब महकमा बरक़ी के अहदेदारों को इस बात की इत्तला पहुंची तो वो फौरी इस मकान को पहुंचकर बिल को दुरुस्त कर दिया। इस तरह इस सारिफ की जान में जान आई। नाज़रीन अब हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।
MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी मकबूल है। अजला के तलबा के साथ अपने रवाबित को और भी मजबूत करने के मकसद से MS ने नई कोशिशों का आगाज किया है। फर्स्ट पैंडेमिक आया था तो उस वक्त हमारी बोर्ड में एक मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि भाई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स MS के वहाँ के डिफरेंट जो कॉलेज लाइक माइंडेड कॉलेजेस जो हैं या लाइक माइंडेड कॉलेज आने वाले हैं उनके साथ एक ताउन करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि भाई यहाँ से सारी वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो MS में हो रही है। हैदराबाद की ही तालीम उनके डोर स्टेप पे, ये हमारा एम था, मंशा था। इसी के तहत हमने महबूब नगर को पहला हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल सिलेक्ट किया। ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज अब इस शहर में MS का फ्रेंचाइज होगा। MS एजुकेशन एकेडमी से हमारा ताल्लुक़ बहुत क़दीम, बहुत मजबूत और बहुत पुराना और बेहतर है। MS एजुकेशन एकेडमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। MS एजुकेशन एकेडमी की खासियत यह है कि यहाँ इंटरमीडिएट कोर्सेज की तालीम के साथ ही MSET और कौमी सतह के एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE, नीट और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की कोचिंग भी अच्छी तरीके से दी जाती है। MS अपने स्टूडेंट्स के लिए मेयारी व दुनियावी तालीम के साथ ही दीनी व अखलाकी तालीम के रिवाज पर भी यकीन रखता है। MS के फ्रेंचाइज ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज में भी इसी निजाम पर अमल किया जाएगा। ये सारी तालीम जो यहाँ हो रही है इंशाल्लाह वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन के जरिए। महबूब नगर में ARK गर्ल्स जूनियर कॉलेज को MS एजुकेशन का फ्रेंचाइज मुकर्रर किए जाने के बाद दोनों इदारों को तवक्को है कि दोनों में इस तरह का ताउन तालीम के मैदान में एक नए ट्रेंड का आगाज करेगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन जिस अखलाकी माहौल में यहाँ स्टूडेंट्स को दी जा रही है उसका दायरा वसी करके हर जगह उसका मेयार, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी बरकरार रखते हुए और MS के सारे उसूलों के साथ उसको एक्सपैंड किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा।